Are you looking for relevant healthcare information? Log on to MediCircle and watch experienced medical professionals talking on common healthcare topics. Stay informed, stay healthy, stay tuned to MediCircle. दर्शकों के लिए सभी ट्रेंडिंग स्वास्थ्य संबंधी विषयों को लाने के लिए लगातार काम कर रहे हैं। एक स्वस्थ रोग मुक्त जीवन जीने के लिए आपको जागरूक करने के लिए आवश्यक समाचार और विचारों को आपके ध्यान में लाना हमारा प्राथमिक उद्देश्य है। इस संबंध में हमारी मदद करने के लिए हम देश भर के प्रतिष्ठित और विशेषज्ञ डॉक्टर्स के साथ जुड़ते हैं। डॉक्टर स्पीक में आज हम बात करने जा रहे हैं पीसीओएस की समस्या और इससे निपटने में आपकी मदद करने के तरीकों के बारे में। हेलो, नमस्कार। मैं हूं अपराजिता मेहरा और आप देख रहे हैं मेडी सर्कल। Today on our PCOS awareness series, we have Dr. Rekha Agarwal with us. Dr. Rekha Agarwal एक प्रसिद्ध गायनेकोलॉजिस्ट और ऑब्स्टेट्रिशियन है जिनको 30 से भी अधिक वर्षों का अनुभव है। उन्हें इंट्रायूट्राइन इंसेमिनेशन IUI, मिरना हार्मोनल IUD, cesarean section, laparoscopic procedures like hysterectomy, abdominal and vaginal both, and treatment of endometriosis and polycystic ovarian diseases में विशेषज्ञता हासिल है। वो बॉम्बे ऑब्स्टेट्रिक्स एंड गायनी सोसाइटी और इंडियन मेडिकल एसोसिएशन IMA की सक्रिय सदस्य भी हैं। Currently, you are consultant at Leelavati Hospital and proud owner and partner at ARC Hospital. तो it is a privilege for us कि आज मैम हमारे साथ जुड़ रही हैं। तो मेरी सर्कल में आपका स्वागत है डॉक्टर रेखा। How are you today, मैम? I'm very well, thank you, and thank you for having me with you. चलिए, तो आज के इंटरव्यू में बिल्कुल देरी ना करते हुए दर्शकों को बताते हैं जिस विषय पे आज हम बात करने वाले हैं वो है पीसीओएस और पीसीओडी। तो इसी के मूल कारणों को आइए सबसे पहले जानते हैं हमारी डॉक्टर रेखा से। PCOS और PCOD ये दो distinct terminologies हैं. PCOD first is polycystic ovarian disease and PCOS is polycystic ovarian syndrome. Disease सिर्फ एक चीज है, syndrome is a collection of many things. So PCOD, which is just polycystic ovarian disease, shows us on sonography multiple cysts in the ovaries. And that is labeled as polycystic ovarian disease. Uske bhi bahut sare there are a lot of categories that they have to meet to be criteria that they have to meet to be called PCOD. Okay, and PCOS is a whole syndrome of prolonged menstrual cycle, weight gain, extra hair where you don't want it, and hair gone where you really want it. All these things, obesity and insulin resistance, these are the parts of polycystic ovarian syndrome. Okay, so when we say I am suffering from PCOD, it is a wrong terminology. PCOD एक ultrasound diagnosis है. Okay, PCOS जो है वो एक डिजीज है, यानी कि वो एक आपका पूरा सिंड्रोम है जिससे आप अफेक्टेड है. ऑलराइट, सो जस्ट हैविंग पॉलीसिस्टिक ओवरीज डज नॉट मेक यू हैव एनी प्रॉब्लम्स, बट इफ यू हैव ऑल द अदर थिंग्स देन यू बिकम अ PCOS पेशेंट. अब क्या कारण होते हैं कि लोगों को पॉलीसिस्टिक ओवरीज होती हैं और PCOS होता है? मैं 30 साल से प्रैक्टिस कर रही हूँ और मेरी 30 साल की प्रैक्टिस में मैंने पाया है कि हम इनिशियली तकरीबन 2 से 3% लोगों में PCOS पाते थे और अब वो बढ़कर अप्रोक्सीमेटली 1 in 5 हो गया है. यानी कि 20% of our young generation is suffering from polycystic ovarian syndrome. Now, what is the reason for this escalation? Escalation is primarily because of our eating habits. The food that we are eating is more refined, more caloric, but less nutritious. Also, our food is having a lot of hormones pumped into it to make it last longer, to have a larger shelf life, to preserve it. So we are pumping our bodies with lot of extraneous hormones. यानी कि हमारे खाने में काफी सारे hormones inject किए जाते हैं जो कि हमारी बॉडी पे असर करते हैं. और तीसरा और एकदम जाहिर सा कारण है इनएक्टिविटी. आज का जनरेशन बेड से उठता है, कार में बैठता है, सोफे में बैठता है
और फिर जाके ऑफिस की चेयर में बैठता है, और हमें एक्सरसाइज करने के लिए जिम जाना पड़ता है। So हमारी true. नॉर्मल एक्टिविटीज के लिए हम चलते ही नहीं हैं। इसीलिए जब हम जिम नहीं जाते हैं, हमारा वजन बढ़ता है एंड पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम हैपेंस। सो इट इज अ लाइफस्टाइल डिसऑर्डर। ये एक Absolutely. लाइफस्टाइल जी. डिसऑर्डर है, जैसा कि आपका डायबिटीज है, हाइपरटेंशन है, ये पीसीओएस भी एक लाइफस्टाइल डिसऑर्डर है। और यदि आप लाइफस्टाइल ठीक करते हैं तो पीसीओएस भी ठीक हो जाता है। चलिए, ये तो आपने बता दिया कि इसके मूल कारण क्या हैं और इन्हीं कारणों से अब नुकसान क्या होते हैं। डॉक्टर साहब, आप इसके बारे में कुछ बताएं। अच्छा, यदि आप मेंस्ट्रुअल साइकिल के बारे में थोड़ा बहुत जानते हैं तो आपको पता है 2 हार्मोन्स होते हैं, एक ईस्ट्रोजन और एक प्रोजेस्टेरोन हार्मोन होता है। अब ये बड़े बड़े वर्ड्स नहीं यूज करके मैं कहूंगी एक ई हार्मोन होता है और एक पी हार्मोन होता है। ई हार्मोन हमारे 1 to 14 डेज तक होता है साइकिल में, एंड पी हार्मोन 14 to 28 डेज में होता है। ओके. अब ई हार्मोन एक डेविल हार्मोन है। ओके, ई हार्मोन कारण है हमारे ब्रेस्ट कैंसर्स का, ओवेरियन कैंसर्स का एंड एवरीथिंग एल्स। इट्स अ डेविल हार्मोन, बट इट इज रिक्वायर्ड फॉर प्रेगनेंसी। ठीक है। और पी हार्मोन जो है वो भगवान ने बनाया है कि ये ई हार्मोन के जो नेगेटिव इफेक्ट्स हैं उसको ठीक करते हैं। ठीक है। अब पीसीओएस में क्या होता है कि ई हार्मोन तो होता है, लेकिन क्योंकि ओव्यूलेशन नहीं होता है इसीलिए सिस्ट्स बनते हैं आपके ओवरीज में, और ओव्यूलेशन नहीं होने के कारण वो पी हार्मोन मिसिंग है। पी हार्मोन मिसिंग है मतलब आपका ई बढ़ रहा है, 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 अनअबेटेड, अनअपोज्ड। और उसको देयर चेक इज नो करने के लिए कोई नहीं ऑपोजिशन, है. यस. कोई नहीं है चेक करने के लिए। जी. और उसी की वजह से ये ई हार्मोन बहुत सारी डेविलिश चीजें करता है आपकी बॉडी में। वो डेविलिश चीज ये है कि ये ई हार्मोन आपके फैट सेल्स में जाके टेस्टोस्टेरोन बनता है। टेस्टोस्टेरोन क्या करता है, आपको मेल लाइक फीचर्स लाइक मेन, आपकी दाढ़ी आ जाएगी, आपकी मूछें आ जाएगी और आपके बाल जहां चाहिए वहां से चले जाएंगे। सो अगर आप देखें किसी लेडी को कि एकदम शी इज लुकिंग एज इफ यू नो शी नीड्स अ शेव, she is not actually, she is suffering from a terrible disease where her testosterone is high, and we need to get her to the right doctor and treat her, and it is completely reversible. कई Okay. लोगों के बाल उड़ जाते हैं initially जी. PCOS में, so हम्म. that is also treatable with just medicine. You don't need a hair treatment. हमारे पास कई Okay. पेशेंट्स आते हैं, सारे स्किन स्पेशलिस्ट, हेयर स्पेशलिस्ट, सबके पास जाकर फाइनली उन्हें पता चलता है कि ये तो पीसीओएस है। तो ये जो ई हार्मोन है वो टेस्टोस्टेरोन बन के हमारी बॉडी में दंगल मचाता है। ओके। दूसरा ये है कि ई हार्मोन क्योंकि ऑपोजिशन नहीं है, प्रोजेस्टेरोन नहीं है या बहुत कम मात्रा में है, तो ये हमें हाई रिस्क बनाता है कैंसर के लिए। तो पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज के पेशेंट्स आर हायर रिस्क फॉर एंडोमेट्रियल कैंसर, ब्रेस्ट कैंसर। ओके, ये एक डाउन साइड है ऑफ पीसीओएस। कई लेडीज आती है कि ठीक है मुझे 3 महीने में एक बार पीरियड्स आता है, आई एम फाइन विद इट, मुझे नहीं फर्क पड़ता, मुझे बच्चे चाहिए नहीं, आई एम जी. नॉट मैरिड, तो हम्म. मुझे नहीं फर्क पड़ता। बट उन्हें हमें ये समझाना पड़ता है कि आपको फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन आपकी बॉडी को फर्क पड़ रहा है। आपको पीरियड्स नहीं चाहिए तो उसके दूसरे तरीके हैं, बट पीसीओएस इज नॉट द वे टू नॉट हैव पीरियड्स। इसीलिए हर इंसान को 25 to 35 डेज में पीरियड्स आने चाहिए। अगर आपके पीरियड्स लेस देन 25 डेज हैं या मोर देन 35 डेज हैं तो यू शुड सीक मेडिकल हेल्प। मैम, अब जब हम लोगों ने इसमें इतनी बात की है तो एक छोटा सा फॉलोअप क्वेश्चन बन रहा है कि इन सिम्टम्स को या जिन चीजों का आपने कई बार मेंशन भी किया, क्या यही तरीके हैं जिनसे कोई स्त्री या कोई लड़की जान सकती है कि वो पीसीओएस से ही परेशान है, या इज देयर एनी टेल टेल साइंस बिसाइड दिस? किस डॉक्टर को या कैसे वो जाने कि उसको पीसीओएस से संबंधित डॉक्टर के पास अब पहुंचना चाहिए? हाँ, तो यूजुअली फर्स्ट एक स्पार्क आएगा जब आपको पता चलेगा कि आपके पीरियड्स प्रोलॉन्ग्ड हो रहे हैं, कि कभी 30, कभी नॉर्मली 30 हुआ करते थे, फिर 35 हुए, फिर 40 हो रहे हैं, और कभी कभी कोई टाइम टेबल ही नहीं है आपके पीरियड्स का कि 3 महीने में एक बार आ रहे हैं। सो दैट इज फर्स्ट साइन। सेकेंड साइन इज एक्ने, आपके चेहरों पे मुहासे आ जाते हैं, एंड टेरेबल मुहासे। थर्ड इज हेयर ग्रोथ एट योर चिन एंड योर मस्टैश लेवल, weight gain. Now
there is one misconcept in everybody's mind. I'm sure all of us want to blame our weight gain on something. कि भाई मैं खाती तो हूं नहीं लेकिन वजन बढ़ रहा है. बट वजन बढ़ रहा है इसीलिए पीसीओएस हो रहा है. पीसीओएस है ये इसीलिए वजह वजन से नहीं बढ़ रहा है. मोटापा नहीं हो रहा है. यस. तो बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि मुझे पीसीओएस है ना इसीलिए मेरा वजन ज्यादा है. नहीं, आपका वजन ज्यादा है इसीलिए आपको पीसीओएस है. जैसे ही आप वजन कम करेंगे, करने की कोशिश भी करेंगे, फर्स्ट मंथ से जब से आप एक्सरसाइज शुरू करेंगे, इमिडिएटली वजन कम नहीं होता है. लेकिन क्या होता है कि आपका फैट टू मसल रेशियो होता है आपकी बॉडी में. ओके. जी. आपका फैट टू मसल रेशियो हर एक का एक टिपिंग पॉइंट होता है. हो सकता है मेरा 65 केजी में टिपिंग पॉइंट आवे, आपका 80 केजी में टिपिंग पॉइंट आए. तो जब भी वो टिपिंग पॉइंट आता है तब आपका पॉलीसिस्टिक ओवरीज प्ले करता है. और जैसे ही आपका मसल टू फैट रेशियो थोड़ा सा डाउन आ जाता है, से 65 से मैं 65 ही रहूं, लेकिन मेरा फैट इज कन्वर्टेड टू मसल बिकॉज आई हैव स्टार्टेड एक्सरसाइजिंग, मेरा पीसीओएस ठीक होने लगता है. तो कई बार लोग बोलते हैं हमने तो एक्सरसाइज करके 1 ही महीना हुआ, ऐसे कैसे ठीक हो गया, वजन तो कम हुआ नहीं. लेकिन आप ये नहीं समझ रहे हैं कि आपने एक्सरसाइज किया तो आपका जो फैट है वो मसल में कन्वर्ट हो रहा है और इसीलिए आपका जो टिपिंग पॉइंट है वो चेंज हो रहा है एंड आपके पीरियड्स रेगुलराइज हो जाते हैं. ओके. सो एक्सरसाइज, स्पेशली एक्सरसाइज एज अ डेली हैबिट, आपका जो रोज का काम है उसमें आपकी एक्सरसाइज हो जानी चाहिए, ना कि तैयार होके जिम जाना पड़े. ऑफ कोर्स वो जाना कोई बुरी बात नहीं है, जी. जी. लेकिन वो हमेशा हो नहीं पाता है. हाँ हाँ. इसीलिए वी हैव टू बिल्ड इन एक्सरसाइज इनटू आवर डेली रूटीन. आप चढ़कर जा रहे हैं, 10th फ्लोर पे काम करते हैं, कोई बात नहीं, आप 6th फ्लोर पे उतर जाइए, 4 फ्लोर्स चढ़कर जाइए. दैट इज डूएबल, इजंट इट? और मुझे आपको लगता है कि अगर घर मेटाबॉलिज्म बढ़ने से यूं भी हमारे अंदर से हार्मोनल सिस्टम मेरे ख्याल से बेटर होने लगता है एंड उसका इनडायरेक्टली और 110%, डायरेक्टली असर पड़ता ही है बिकॉज यस, पीरियड्स अपने आप ही हार्मोनल उससे किसी ना किसी तरीके से अफेक्टेड होते हैं. completely जी. periods are hormonal event. It is a राइट. hormonal event. So if your hormones are all right, your periods are all right. But if your periods are not all right, you need to go and see a gynecologist. राइट. बहुत अच्छे से मैम आपने एक्सप्लेन किया ये बात को. तो अभी हमने इरेगुलर पीरियड्स की बात की है, तो मैम क्या पीसीओएस के साथ प्रेगनेंसी, क्योंकि नाउ दैट वी नो कि क्लियर इंडिकेटर्स एक डिलेड होते हैं हमारे पीरियड्स Cycles. साइकिल, तो क्या ऐसे में प्रेगनेंसी की संभावनाएं होती हैं विद पीसीओएस? जी, ये सोचना कि मैं पीसीओएस हूँ और मैं प्रेग्नेंट नहीं होंगी और लापरवाही करना गलत है. क्योंकि पीसीओएस में ऑफ कोर्स ओव्यूलेशन नहीं होता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि हर बार ओव्यूलेशन नहीं हो रहा है. आपकी 5-6 साइकिल में एक आध ओव्यूलेशन हो जाएगा और आपकी बदनसीबी से तभी आप प्रेग्नेंट हो जाएंगे अगर होना नहीं चाहते हैं तो. ओके. एंड ऐसा नहीं है कि हर पीसीओएस पेशेंट को लंबा चौड़ा ट्रीटमेंट चाहिए प्रेग्नेंट होने के लिए, लेकिन थोड़ी सी हेल्प की जरूरत है. बट ये कहना कि मुझे पीसीओएस है और मैं प्रेग्नेंट नहीं होंगी और मैं कोई कॉन्ट्रासेप्टिव यूज नहीं करूंगी, ये भी गलत है. सो इट इज नॉट 100% सेफ इफ यूर पीसीओएस की आपको कॉन्ट्रासेप्टिव की जरूरत नहीं है, ऐसा नहीं है. बट ऑफ कोर्स आपने ये कहा कि डिफिकल्ट होता है लिटिल फॉर पीसीओएस के साथ कंसीव करना. यस, जी. या मैं समझाती हूँ क्यों. हाँ जी. आपकी एक साल में 12 से 13 साइकिल्स आती हैं. वो 12 से 13 साइकिल्स में आपको ओव्यूलेशन होता है, तो आपको 12 अपॉर्चुनिटीज है प्रेग्नेंट होने की एक साल में. लेकिन अगर आपके पीसीओएस की वजह से आपको 2 या 3 साइकिल आती हैं साल भर, तो आपकी अपॉर्चुनिटी कितनी हुई, 2 या 3. वाओ. बहुत ही आसान इसीलिए तरीके से आपने एक्सप्लेन किया इस प्रॉब्लम को. सो ट्रू. देयर तो आर इसीलिए चांसेस ही हमारे या डायरेक्टली ड्रास्टिकली कम हो गए हैं. अब मैम फाइनल क्वेश्चन पे आते हैं बिफोर वी लेट यू गो. और अंतिम प्रश्न आज के इस चर्चा का ये रहेगा, हम पीसीओएस को कैसे रोकते हैं? कोई तरीका है इसको ट्रीट करने का यस, या संभालने का? बहुत बहुत ही एकदम सटीक प्रश्न पूछा है आपने. और ये हमें जैसे ही हमारे बच्चे, हमारी बेटियां जब बड़ी हो रही होती हैं, तो उनकी फूड हैबिट्स पे हमें ध्यान देना चाहिए. 60 to 70% खाना उन्हें घर का खाना चाहिए. एटलीस्ट एक मदर ये ध्यान रख सकती है. मैं एक डॉक्टर हूँ, मेरे दोनों बच्चे डॉक्टर्स हैं, लेकिन फिर भी हम एश्योर करते हैं कि अबाउट 80 to 85% घर का खाना खाएं सब लोग. 10% कभी कभी आपको बाहर खाना पड़ता है, लेकिन
बाकी 80 to 90% आप घर का खाएं। घर के खाने से क्या होता है, आपको न्यूट्रिशन अच्छा मिलता है, कैलोरीज भी अच्छी मिलती हैं, एंड प्रिजर्वेटिव्स वाला खाना नहीं खा रहे हैं आप फ्रेश खाना खा रहे हैं। तो यदि हम इस चीज की आदत शुरू से ही डाल दें अपने बच्चों में, बेटों में बेटियों में दोनों में, तो उनका वेट विल बी अंडर कंट्रोल। सेकेंड इज, Right. एक एक्सरसाइज का रूटीन स्कूल चिल्ड्रन में भी होना चाहिए। दे शुड फॉलो सम गेम, से बास्केटबॉल, हैंडबॉल और जस्ट एनीथिंग। एक वो इनकलकेट कर दिया हैबिट बच्चों में, तो वो फिर निकलता नहीं है। तो यदि हम जड़ से इस चीज को निकालना चाहते हैं, तो हमारे बच्चों से, हमारी लड़कियों से हमें शुरू करना चाहिए कि दे शुड हैव अ फिजिकल एक्टिविटी। एक जुनून होना चाहिए उनका कि भाई आज एक्टिविटी नहीं की तो आज दिन पूरा नहीं हुआ, इस तरह से ना कि हम मार पीट के उनको बोले नहीं करना ही है। दे शुड लव इट, यू नो, and they Yes, should be and happy that can about their only be body yes image. and groomed when they are young. अगर छोटे पे Yes, आप बच्चे पेरेंट्स के साथ एंजॉय करते हैं आउटडोर एक्टिविटी, रोज पार्क में जाना या थोड़ी देर भी खेलना, कुछ भी टाइम निकाल के, correct. तो naturally they enjoy that part of the day. Enjoy that. Yes, Yes, yes. and then they tend to And become adults also who enjoys activities. joy outdoors. Yes, Yes. वरना कि हमने देखा है हमारे बच्चे, बहुत सारे बच्चे जस्ट कंप्यूटर पे बैठे रहते हैं या टीवी पे बैठे रहते हैं, घंटों निकाल सकते हैं, घंटों क्या महीनों निकाल सकते हैं ये लोग। तो वो नहीं होना चाहिए। सो दैट इज वन थिंग। फूड इज अनदर थिंग। एंड थर्ड थिंग इज कि अवेयरनेस जो कि आप अभी क्रिएट कर रही हैं, कि अगर इंसान अवेयर ही नहीं होगा तो वो हेल्प कैसे सीख करेगा। तो ये अवेयरनेस होना कि हमारे पीरियड्स डिले हो रहे हैं, प्रोलॉन्ग हो रहे हैं, तो हमें जाके डॉक्टर से मिलना है। ओके, एंड जैसे ही वो हमारे पास आते हैं, ऑफ कोर्स हम करेक्ट करने की कोशिश करते हैं, एंड हो भी जाता है। इट इज नॉट अ डिफिकल्ट डिजीज टू ट्रीट, इट इज जस्ट द डिफिकल्टी that is faced by the patient from their home to reach us. That distance they take a long time to cover, and that is why they suffer. So if that distance is covered faster, they will suffer lesser. And weight and diabetes. Third most important thing is stress. जो स्ट्रेस हो रहा है इस जनरेशन को, हालांकि हमारे पास सब कुछ है, क्या नहीं है, हाई स्पीड इंटरनेट है, नेटफ्लिक्स ऑन द बटन है, वी हैव हाई स्पीड कार्स, वी हैव एवरीथिंग, बट वी आर वेरी स्ट्रेस्ड, and that de-stressing is very, very important. It should be, it should be an hour of me time for everybody. Everyone should get that, including the children. They should be taken away from their tuitions and from their studies for at least 1 hour. De-stress them mentally, physically stress them. De-stress mentally and physically you stress them by making them play and give them the right food. We can get away without PCOS in our life. डॉक्टर रेखा, आपसे बात करके इतना अच्छा मोटिवेशन मिला है कि यूं तो मैं काफी एक्टिव इंसान हूं, लेकिन मुझे ये लगता है कि लग रहा है। बच्चे, आप जरूर आपने Yes. बात की है कि बिल्कुल बेसिक रूटीन में हम कुछ चीजों को डाल सकते हैं। अगर बच्चे, अगर आप बस से भेजते हैं, इफ इट इज अ वॉकेबल डिस्टेंस है, तो बच्चों को Yes. इनकरेज किया जा सकता है कि वो वॉक करें टू स्कूल, और इफ इट ऑल Yes. दे कैन साइकिल डाउन टू देयर स्कूल्स, इफ इट ऑल वो डिस्टेंस Yes. मैनेजेबल है एंड दे डू नॉट हैव टू क्रॉस बिग रोड्स एंड ऑल। तो ये सब चीजें हम लोग डाल सकते हैं जो रूटीन में आ जाएं। और जैसे कि आपने हाँ, कहा कि हम जागरूकता के लिए ये कर रहे हैं, और पीसीओएस पूर्ण रूप से एक लाइफस्टाइल डिजीज है। बच्चों को आपने जैसे बिल्कुल। बताया, मात्र खान पान से, दैनिक दिनचर्या को थोड़ा सा बदलने से, व्यायाम से हम इसे काफी हद तक मैनेज कर सकते हैं। तो इससे डरने के बजाय इसके बारे में खुलकर बात करके, समझ करके कि फॉल्ट कहाँ लाई कर रही है, चाहे वो पेरेंट्स के साथ Yes. हो चाहे वो बच्चों के साथ हो, बट वी नीड टू ऑल वर्क टुगेदर ऑन दैट। और इसके लिए मुझे Yes, I लगता है agree to डॉक्टर that. रेखा, आज आपने जितने अच्छे से ये इंटरव्यू में हमें ये बातें समझाई हैं, बताई हैं, हमारे सभी दर्शकों को आज के इस चर्चा से बहुत लाभ होने वाला है। थैंक यू सो मच। मैं I पूरी hope so. मेडिसर्कल की टीम की ओर से आपको धन्यवाद देना चाहती हूँ। इट वाज रियली अ प्लेजर हैविंग यू टुडे। यू वाज extremely, amazing with your insights and, valuable inputs on this interview. Thank you. Thank you so much for having me. Thank you.